हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस. As I have started the revisionary series in which I am covering the major topics that are relevant for examination. In the last part, I had covered the residential status and scope of total income, in which determination of residential status and scope of total income, both topics were covered. And I had specifically mentioned that as poem is also very relevant topic for CA final examinations, I would be covering that as a separate video. And in this video, I'm going to cover the same. That is, we are going to discuss the principles that govern how to determine, excuse me, how to determine the place of effective management in case of a company, right? So let us again talk about the residential status of a company. Whenever you are calculating the residential status of a company, you have to first check whether it is an Indian company. If it is an Indian company, then it is a resident. If it is not an Indian company, then you have to check whether the POEM, that is place of effective management, is in India. If the POEM is in India, then it is a resident, otherwise a non-resident. So majorly, in case of foreign companies, you need to check that is there a possibility that the POEM is in India. Now, when you talk about POEM, practically it is really difficult to establish that a company which is not incorporated in India has a place of effective management in India. Why is this POEM concept relevant? The whole concept of POEM is related to the concept of substance over form, because in a lot of cases there can be seen that companies may adopt a method that they incorporate in some other company so that they are getting some certain benefits which are available to that country's resident companies or so, and they are like in substance the company is being governed from a very different source, very different country. However, the incorporation is in different country. So in order to basically consider that this can be a place, and this can be an area where people may be using these concepts or these methods to evade, or you can say avoid tax. That is why place of effective management is something which is very very important as considered in case of the international taxation perspective. So guiding principles, how do you determine the place of effective management? Again, a very important point to be kept in mind is that when you are calculating POEM, the method may differ from company to company or specific case to case. There is no straight jacket formula, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं बना सकते वो कि 2+2=4 तो मतलब चलो आपका पीओएम इंडिया में है. आपको केस एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा, और कुछ गाइडलाइंस डिपार्टमेंट ने इशू करे हैं, सीबीडीटी ने इशू करे हैं. सो लेट अस डिस्कस what are the points to be considered. The first important criteria that is to be considered is to check whether the company is having an active business outside India or not. So first of all, you need to determine whether or not the company is engaged in active business outside India. Now, when you talk of active business outside India, that is ABOI, there are certain points which are to be checked. So in this flow chart, I have covered the points and also the related aspects of that particular point. So let us discuss one by one. If the passive income is not more than 50% of its total income, उसकी जितनी भी total income है, उसके 50% से ज्यादा आपकी passive income नहीं है, ठीक है? And less than 50% of its total assets are in India. The total assets of that particular company, less than 50% are in India, and 50% of the total employees are in India. So less than 50% of the total employees are in India, and payroll expenses of such employees is less than 50% of the total payroll expenditure, the company will be said to be in an active business outside India. So if all these conditions are satisfied, it is said that the company is having an active business outside India. Now let us discuss the meaning of these terms. कि जब हम बोल रहे हैं पैसिव इनकम, तो पैसिव इनकम में क्या क्या आता है, टोटल इनकम में क्या आएगा, है ना, असेट्स मतलब क्या. So basically, first point which you are supposed to check is that if the passive income is not more than 50% of its total income, where passive income is the indirect income, first of all, that is royalty, dividend, interest, etc. जो active transactions से नहीं आ रहे हैं, that is passive income, and transactions where sale or purchase is
from or to its associated enterprise. This is also considered as a passive income. So very important to be kept in mind that if the sale and purchase both is undertaken from or to its associated enterprise, then it is considered as a passive income. तो अगर आपका इनकम में से आपने सिर्फ परचेज रिलेटेड पार्टी से किया है लेकिन सेल अनरिलेटेड को किया है, then it will not be considered as a passive income for the purposes of this computation. Okay, so this is passive income. इनकम मतलब क्या है? तो इनकम इज एज पर द टैक्स लॉज. अगर टैक्स लॉज के हिसाब से आपने कुछ कंप्यूटेशन किया है तो वो इनकम, या फिर अगर आपकी टैक्स लॉज में कोई कंप्यूटेशन नहीं प्रिस्क्राइब्ड है तो फिर जो बुक्स के अकॉर्डिंग आपकी इनकम आ रही है वो इनकम कंसिडर करी जाएगी. सो इफ द पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ द टोटल इनकम and less than 50% of its total assets are situated in India. जितने भी total assets है, तो how do you calculate total assets? If the assets are depreciable, average of its value for tax purposes at the beginning and closing. तो टैक्स पर्पसेस से, जैसे हमारे यहाँ पर इनकम टैक्स में एक मेथड है ना कि आप कैसे फिक्स्ड असेट्स का बुक वैल्यू और डब्ल्यूडीवी वगैरह कैलकुलेट करते हो, वैसा उस सामने वाली कंट्री में भी हो सकता है कि कुछ मेथड हो. तो अगर इंडिविजुअली डेप्रिशिएट किया जा रहा है तो उन असेट्स की जो टैक्सेबल ओपनिंग बुक वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू है टैक्स पर्पसेस की, दैट विल बी कंसिडर्ड. अगर ब्लॉक डेप्रिसिएशन हो रहा है इंडियन प्रोविजंस में जैसा है वैसा ही अगर बाहर भी हो रहा है तो एवरेज अगेन ऑफ इट्स वैल्यू फॉर द टैक्स पर्पसेस एट द बिगिनिंग और एंड, तो फिर आप ब्लॉक का एवरेज कंसिडर करोगे. एनी अदर असेट्स एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे कोई असेट है जो डेप्रिशिएबल ब्लॉक में नहीं आ रही, डेप्रिशिएबल में नहीं आ रही एज पर टैक्स लॉज, तो फिर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एवरेज कंसिडर करोगे. सो वैल्यू एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी considered. Okay, so basically this is how you will be considering the assets to be checked. So अगर total assets कैसे निकालनी है वो हमने बात करी. टोटल असेट्स जो हैं उसका लेस देन 50% इंडिया में, मतलब मेजॉरिटी इंडिया के बाहर है. तो आप देखोगे तो सारे पॉइंट्स में वैसा ही हो रहा है कि मेजॉरिटी बिजनेस इंडिया के बाहर है, इसीलिए उसको बोला एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, है ना. 50%, लेस देन 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर सिचुएटेड इन इंडिया और आर रेसिडेंट इन इंडिया. मतलब आपकी जितने भी टोटल एम्प्लॉइज है उसमें से कम, लेस देन 50%. नाउ व्हेन यू टेक टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, average number of employees as at the beginning and end shall include persons who are not employed directly but they are performing tasks similar to the employees will also be considered. So basically आपके जितने भी टोटल एम्प्लॉइज है अगर आधे से भी कम इंडिया में है, मेजॉरिटी इंडिया के बाहर है, तो ये बोला जाएगा कि एक्टिव बिजनेसेस आउटसाइड इंडिया. And the payroll expenditure of such employees, a very important point to be kept in mind. Suppose कोई कंपनी है जिसमें टोटल सिंप्लिसिटी के लिए रखते हैं 20 एम्प्लॉइज हैं, जिसमें से सिर्फ 2 इंडिया में है, ठीक है, तो मतलब लेस देन 50% हो गया. तो आपको प्राइमा फेसी क्या लगेगा कि यार 2 ही एम्प्लॉइज इंडिया में है, मतलब एक्टिव बिजनेस इज आउटसाइड इंडिया. लेकिन ये जो 2 एम्प्लॉइज हैं, दीज आर द 2 मेन मैनेजेरियल पर्सन्स जिनके इशारों पर ही पूरी कंपनी चलती है और इनकी सैलरी इन सब बचे हुए एम्प्लॉइज से भी ज्यादा है. बिकॉज ऑब्वियसली आप सब जानते हैं हाउ द हायरार्की वर्क्स. तो जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का, वहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम होते हैं मैनेजमेंट पोजीशंस पे, लेकिन उनकी पेरोल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है. तो उन्होंने क्या बोला है, देखो, such employees, payroll expenditure on such employees is less than 50%. मतलब सिर्फ ऑपरेशनल पार्ट इंडिया में हो रहा है, जैसे बहुत सारी कंपनीज करती है, फॉरेन कंपनीज अपना ऑपरेशनल पार्ट आउटसोर्स कर रखा है उन्होंने इंडिया में, तो वो एम्प्लॉइज अगर यहाँ पर रह भी रहे हैं और उनका सैलरी जो है वो टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर के 50% से कम है, तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया मान लिया जाएगा. लेकिन अगर ये सिचुएशन आती है तो पकड़ा कैसे जाएगा व्यक्ति कि भाई तुमने भले ही नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंडिया में कम रखे हैं, लेकिन वो एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनका जो टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर है वो आपके ओवरऑल पेरोल एक्सपेंडिचर के 50% से भी ज्यादा है. दैट मीन्स दैट सब्सटैंशियल एक्सपेंडिचर इज बीइंग इनकर्ड इन इंडिया. दिस पॉइंट विल लूज द relevant, lose the एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया कंडीशन. तो क्या बोला उन्होंने, अगर वो भी कम है एंड ऑल दिस इज एंड, सो ये चारों साथ में आपको फुलफिल करने हैं तो ही बोला जाएगा दैट द कंपनी इज एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया. गेटिंग द पॉइंट.
सो एक्टिव बिजनेस अगर आउटसाइड इंडिया है, पहले तो कभी भी पोयम निकालना है, सबसे पहले आपको एबीओआई चेक करना है। एबीओआई चेक करने के बाद if the active business is in outside India, prima facie POEM will also be in outside India कि भैया इनकम बाहर है, एम्प्लॉइज बाहर है, सैलरी उनकी ज्यादा है, असेट्स बाहर है, सब बाहर है, तो पीओईएम भी इंडिया में है, एक्सेप्ट if the major decisions are taken by board of directors in India. However, if board of directors is not exercising such power and powers are being exercised by holding company that is resident in India, then also POEM will be in India. तो अल्टीमेटली देखो घूम फिर के सारे सब्सटेंस का यही मतलब निकलेगा, तुम्हारे जितने भी कंडीशंस तुम पढ़ लोगे पीओईएम में, दैट व्हाट इज हु इज द मेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, और वो जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अगर वो इंडिया में है तो बस बात खत्म, पीओईएम इंडिया में हो जाएगा। तो अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है तो प्राइमा फेसी तो बाहर ही जाना है, लेकिन फिर भी ये चेक करना जरूरी है कि इवन इफ द एक्टिव बिजनेस इज आउटसाइड इंडिया, क्या मेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इंडिया में प्रेजेंट है। इफ यस, पीओईएम विल बी इन इंडिया। इफ द एक्टिव बिजनेस इज इन इंडिया, देन आइडेंटिफाई कि कौन लोग हैं जो डिसीजन ले रहे हैं, और डिटरमाइन करना है कि वो लोग कहाँ पे डिसीजंस ले रहे हैं। अगेन इफ इट इज इन इंडिया, पीओईएम विल बी इन India. So this is an overview of how do you determine the place of effective management in case of a company which is not an Indian company. Ultimately एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो वो है मेन डिसीजन मेकिंग कहाँ पर हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो POEM है वो कहाँ पर आएगा। Now they have given some guiding principles which we can just take an overview. लोकेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ है, कहाँ पे डिसीजंस ले रहे हैं, डिसीजंस कौन से लिए जा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर जो इंडिया में डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के डिसीजंस हैं तो फिर आप पीओईएम इंडिया में नहीं बोलोगे। मैनेजेरियल इंपैक्ट इंडिया से आ रहा है अगर, है ना, एग्जीक्यूटिव कमिटी कहाँ पर बैठी है, हेड ऑफिस कहाँ पर है, ये सारे कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स आप लोगों को देखने हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अब आजकल फिजिकल मीटिंग्स तो होती नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस आप कॉर्पोरेट्स में देखो, कंपनीज में देखो, वी आर ऑल हैविंग ऑनलाइन मीटिंग्स नाउअडेज। सो देन अल्टीमेटली कहाँ से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिजिकल लोकेशन भले ही कहीं और है, इन इफेक्ट कहां पर डिसीजन मेकिंग हो रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है और वो डिसीजंस कैसे ले रही है वो ध्यान रखना है, कहां से ले रही है वो ध्यान रखना है, ऑपरेशनल नहीं, मैनेजेरियल डिसीजंस एज आई मेंशन कि रेगुलर डे टू डे वर्किंग से नहीं, आपको मैनेजेरियल जो कंपनी को ओवरऑल इफेक्ट कर सकते हैं, कोई नए प्रोडक्ट लाइन शुरू करना है, कोई नया कोई प्रोडक्ट लाइन बंद करना है, ये सब मेजर डिसीजंस होते हैं ना। ऑपरेशनल डिसीजंस जो हैं वो सारी चीजें आपके रूटीन डिसीजंस जो हैं वो आपके पीओईएम के लिए रेलेवेंट नहीं है। So these are certain guiding principles which department has prescribed, and basis that you have to check whether the POEM will be in India. CBDT has also clarified कि अगर असेसिंग ऑफिसर को डाउट है, सपोज आपको कोई असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि हाँ यार ये कंपनी फॉरेन कंपनी है लेकिन इसके मेजर डिसीजंस इंडिया में लिए जा रहे हैं, तो वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता कि हाँ चलो इसको रेसिडेंट बताओ और इसकी इनकम टैक्सेबल करो, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। व्हाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट, यू शुड नो द अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि पीओएम अगर इंडिया में आ गया तो वो इंडिया की रेसिडेंट हो गई। अब अगर वो इंडिया की रेसिडेंट हो गई तो सोचो उसकी इनकम स्कोप पे कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा, उस कंपनी की रेसिडेंट हो जाने पर स्कोप ऑफ इनकम कितना वाइड हो जाएगा। सो पीओईएम कंपनीज के लिए भी बहुत ही क्रिटिकल एरिया है और डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत क्रिटिकल एरिया है। इफ बिफोर इनिशिएटिंग द प्रोसीडिंग्स ही हैज टू सीक अप्रूवल कि भाई मुझे लग रहा है लेकिन मुझे मेरे सीनियर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इफ ही प्रपोजेस टू होल्ड अ कंपनी बेसिस ऑन पीओईएम, देन आफ्टर सीकिंग अप्रूवल of the collegium of 3 members considering or consisting of principal commissioner or commissioners to be constituted by the principal chief commissioner, उसके बेसिस में ही डिसीजन दिया जाएगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग अ कंपनी को भी दिया जाएगा। Until and unless it is done, you cannot just initiate proceedings कि हाँ चलो इसको POEM मान करके इसकी इनकम को इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा, है ना। So you have to take prior approvals, proper approvals,
and basis on that only you can take such decision that yes, the POEM is in India. So these are the provisions which are supposed to be checked, and basis on that there are certain examples given. You can solve them once कि कब POEM इंडिया में इस्टेब्लिश माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा. So basis on this examination में इससे related questions बहुत बार आता है to determine the POEM. So be sure कि कब active business इंडिया में है, कब बाहर है, और basis on active business POEM कैसे determine किया जाएगा. So now we discussed about the residency status of a company, that is how to determine the place of effective management. As mentioned, POEM provisions shall not be applicable to a company whose turnover or gross receipts does not exceed 50 crores. So basically, if it is 50 crores or less, if it is not more than 50 crores turnover or gross receipts, then these provisions shall not be applicable. Now, once we have understood how to calculate, how to determine the POEM, basically to determine the residential status of a company, how do you calculate the place of effective management? There are certain guiding principles as we discussed. There is also a specific section 115JH that has been introduced as a transition mechanism. So क्या है basically इसका concept? Many a times this particular point is missed. जब हम POEM पढ़ते हैं तो हम लोग ABOI, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, ये सब चीजों को बहुत फोकस कर देते हैं, बट ये ट्रांजिशन मैकेनिज्म इज समथिंग व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जामिनेशन में आने के चांसेस काफी ज्यादा है. प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस इज, सपोज करें किसी कंपनी पे POEM अप्लाई हो गया, तो अब होगा क्या? इन द फर्स्ट ईयर हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल इनकम? सो हमने स्कोप ऑफ इनकम वगैरह तो चलो बात कर ली कि ना इनकम डीम्ड टू अक्रूराइज इन इंडिया है, ये है, वो है, लेकिन वंस द फॉरेन कंपनी बिकम्स अ रेसिडेंट इन इंडिया, एज आई told you earlier as well, there are a lot of repercussions that could follow. So the transition mechanism is basically for the companies जो कि first time India में as a resident assess हो रहे हैं because of the provisions of POEM. So that is very important to keep in mind. Now what they have given in this particular case कि जो भी कंपनी पहली बार रेसिडेंट हो रही है तो उसके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, कुछ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, कुछ एग्जेम्पशंस, डेप्रिसिएशन, वो सब कुछ कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि अब वो इंडिया में रेसिडेंट हो गई, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी उसकी काफी सारी इनकम. नाउ व्हेन यू कैलकुलेट टैक्स, हाउ विल यू कंप्यूट डेप्रिसिएशन, हाउ विल यू सी कितना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था जो इस साल सेट ऑफ मिल सकता है, हाउ कैन यू गिव सर्टन डिफरेंट स्पेशल प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ रेसिडेंट्स इन इंडिया. So all these things have to be kept in mind, and that is why this transition mechanism has been introduced. What has been provided in the transition mechanism, transition provisions will also cover subsequent previous years if the foreign company is still resident in India and that particular year ends on or before on which such assessment proceeding is completed. So suppose there is any particular assessment proceeding which is going on, and this transition provision shall be applicable till the subsequent previous years if it is a resident in India till the assessment proceedings are concluded. Okay. Now, if there are certain conditions basis which these benefits will be given, and if the conditions are not followed, the company, the benefit relief given shall be deemed to be wrongly allowed, and therefore rectification shall be passed. Assessing officer recompute कर लेगा कि भाई तुमको बोला था conditions follow करो, तुमने follow नहीं करी. This will be considered as a mistake apparent from record, and rectification will be done, and accordingly your income would be recomputed. Let us discuss one by one in a quick review क्या क्या बोला गया है. How to determine the opening WDV. तो अगर आपका जो भी कंट्री है फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन है, वहां पर आपके टैक्सेबल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर आपके पास रिकॉर्ड्स हैं कि कितना ओपनिंग वैल्यू रहना चाहिए एज पर टैक्सेशन, दैट विल बी कंसिडर्ड. If that particular WDV is not available as per the tax records, then WDV shall be calculated assuming कि ये अगर वहां पर डेप्रिशिएट हुई होती तो उधर के लॉस के अकॉर्डिंग इसकी WDV कैसे निकल के आती, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द ओपनिंग WDV. एंड इफ इट इज नॉट एट ऑल असेस्ड टू टैक्स, अगर वो वहां पर टैक्सेशन अप्लाई ही नहीं हो रहा है उस कंपनी के ऊपर उस पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन में, देन यू हैव टू टेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज द बेस. ओके. सिमिलर केसेस आर गिवन फॉर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस. अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वहां पर असेस हो रहा है तो वहां के टैक्स रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है आपका एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, वो यहाँ पर कंसिडर कर लिया जाएगा. सिमिलरली अगर वो वहां पर असेस नहीं हो रही है तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपको कंसिडर करना
पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लॉस को कंसिडर करना पड़ेगा. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैरी फॉरवर्ड एंड ब्रॉट फॉरवर्ड सेट ऑफ लॉसेस, देन such brought forward and unabsorbed depreciation shall be deemed as loss and unabsorbed depreciation as on the first day of the previous year and shall be allowed to be set off and carried forward for the remaining period calculated from the year in which they have occurred for the first time, taking that year as the first year. तो जितना आपका बचा हुआ टाइम है उतने पीरियड के लिए आपको उसका कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ यहाँ पर दिया जाएगा. However, again, a very important point to be kept in mind for in respect of such set off of losses shall be allowed only against the income which has become chargeable to tax in India because of the application of POEM. तो अगर कोई इनकम है जो आपकी POEM की वजह से इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स हुई है, उसी के अगेंस्ट आपको इसका सेट ऑफ क्लेम करना अलाउड है, उसके अलावा आप क्लेम नहीं कर सकते हो. Now when you are preparing the foreign accounts, there are a lot of countries which do not follow April to March year. So how will you calculate profit and loss? कैसे निकालेंगे, क्या consider करेंगे? So if the year is not ending on 31st of March, the foreign company is required to prepare profit and loss account and balance sheet up to 31st of March. आपको हमारे लिए तो बनाना पड़ेगा because हम लोगों के यहाँ पर तो April March follow होता है. If the foreign company is also required to prepare profit and loss and balance sheet for succeeding period of 12 months beginning from 1st March and 31st March till the year foreign company remains resident, तो उसको हर बार financials बनाने पड़ेंगे, right? Now let us take an example, क्योंकि बहुत बार क्या होता है that the other country may be following January December or the other country may be following June July assessment year, उनका हो सकता है जून से जुलाई वाला चल रहा हो. There are various different provisions which are applicable to different jurisdictions. So how do you calculate कब से कब तक का आपको POEM के लिए financials बनाने पड़ेंगे? They have given an example. अगर पीरियड लेस देन 6 months का हो रहा है, मतलब क्या बोला है देखो, सपोज 23-24 में कोई कंट्री इंडिया की रेसिडेंट हुई, इंडियन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग प्रीवियस से 23-24 में वो इंडिया की रेसिडेंट हुई एंड उसका अकाउंटिंग ईयर जो है वो कैलेंडर ईयर है, तो उसका ईयर कब क्लोज हुआ होगा? जनवरी 23 में क्लोज हुआ होगा, मतलब नया साल शुरू हुआ होगा बेसिकली, है ना. और यहाँ पर हमको क्या चाहिए? 23-24, तो जनवरी से लेके मार्च तक के अगर आप अकाउंट्स बनाते हो, ये एकदम ही छोटा पीरियड है विच इज लेस देन 6 months. सो व्हाट दे हैव मेंशन कि अगर ऐसे केसेस में फॉर द पर्पसेस ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, इफ द पीरियड इज लेस देन 6 months, आपको उसके पिछले साल में इसको मर्ज कर देना पड़ेगा. मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? जनवरी 22 से दिसंबर 22 तक का तो बना हुआ है ही, मतलब उनके पास, फॉरेन कंपनी के पास, और फिर जनवरी 23 लगा, तो इस पीरियड में ये पूरा 3 months भी मर्ज हो जाएगा, मतलब 15 months के फाइनेंशियल्स आप बना करके अकॉर्डिंगली आपका कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ जो है वो कंप्यूट करोगे. एंड क्योंकि हम 23-24 में यहाँ के रेसिडेंट हो रहे हैं, 23-24 का भी प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों को बनाना पड़ेगा. सो कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल्स फॉर द पीरियड ऑफ 1st January to the 31st of March, and it is also required to prepare the profit and loss and balance sheet for the period of 23-24. So this you have to do for preparation of financials, and also in case of carry forward and set off of losses, क्योंकि period 6 months से कम है, आपको accordingly पिछले period में इसको merge करना पड़ेगा. एक और example है, you can go through it, which is considering the situation of more than 6 months. Okay, then what you will be doing? So now if the period is more than 6 months, then it is required to, again यहाँ पर भी बनाना तो पड़ेगा जो पिछले पीरियड है उतने का. जैसे इन्होंने एग्जांपल जून जुलाई वाला ही दे दिया है, चलो बढ़िया. तो जून से जुलाई से जून का आपका पीरियड चल रहा है, देन 23-24 में पहली बार हुआ, तो लास्ट जो पीरियड क्लोज हुआ होगा वो हुआ होगा जुलाई में, वहां से लेके मार्च तक का आप बनाओगे. बट जुलाई का सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च इज 9 months. सो फॉर द पर्पस ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस आपका ऑलरेडी 6 months से ज्यादा है, सेपरेट अकाउंटिंग ईयर मान के प्रपोर्शनेट बेसिस पे आप लॉसेस कैलकुलेट कर लोगे. गेटिंग द पॉइंट? तो दोनों ही केसेस में हमने बात करी कि जो पीरियड है
रिमेनिंग पीरियड है उतने के फाइनेंशियल्स भी बनाने पड़ेंगे, और कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ लॉसेस के लिए आपको स्पेसिफिकली क्या चीज चेक करनी है वो हमने डिस्कस किया. TDS provisions, there are a lot of sections which are applicable only to the residents, and there are certain sections which are applicable only to फॉरेन कंपनीज. सो अगर सपोज कोई केस है जिसमें फॉरेन कंपनी वाला सेक्शन भी अट्रैक्ट हो सकता है और रेसिडेंट, तो अब क्या करेंगे, वो रेसिडेंट भी है और फॉरेन कंपनी भी है, ऐसे में आप फॉरेन कंपनी को प्रायोरिटी दोगे. सो कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट एज आर एप्लीकेबल टू द फॉरेन कंपनी prior to it becoming Indian resident shall be considered as sufficient compliance. अगर आपने वो compliance कर लिए हैं तो फिर से आपको कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है. द प्रोविजंस एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी अलोन शैल अप्लाई. फिर आपको रेसिडेंट के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली जो क्रेडिट रहेगा, FTC आपका होता है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, शैल बी एंटाइटल्ड टू रिलीफ और डिडक्शन ऑफ टैक्सेस पेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 90 और 91 व्हिच वी डिस्कस इन द डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट्स. Very important, non-applicability of the notification. Now this notification is given only for the purposes where POEM is applicable, right? तो अगर कोई ऐसी इनकम है जो आपकी irrespective of POEM इंडिया में chargeable to tax है, जैसे इनकम which is deemed to accrue or arise in India is chargeable to tax in India irrespective आपका residential status. तो अगर कोई इनकम है जो if that foreign company was not a resident by applicability of POEM provisions, तो भी वो इनकम इंडिया में अगर चार्जेबल टू टैक्स रही होती, उस इनकम पर कोई भी बेनिफिट इस नोटिफिकेशंस के नहीं मिलेंगे. ठीक है, नो बेनिफिट शैल बी गिवन अगेंस्ट द इनकम विच वाज चार्ज्ड इन इंडियन प्रोविजंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस. उसके अगेंस्ट कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. Applicability of notification where the foreign company becomes resident in the subsequent previous year also. So again it shall be applicable in the subsequent year also. Applicability of other provisions relating to foreign company. तो अब उन्होंने 3 कैटेगरीज में बांटा है. कुछ सेक्शंस है जो सिर्फ नॉन रेसिडेंट्स को अप्लाई होते हैं, कुछ सेक्शंस है जो सिर्फ रेसिडेंट्स को अप्लाई होते हैं, और कुछ सेक्शंस है जो सिर्फ फॉरेन कंपनीज को अप्लाई होते हैं. तो अब कौन सा इसके ऊपर लगेगा, ये फॉरेन कंपनी भी है, ये रेसिडेंट भी है, तो कब क्या अप्लाई करेंगे. तो दे हैव क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजंस स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू इट. Specifically applicable to non-residents will not apply because now it is a resident, and provisions specifically applicable to resident shall apply to it. Okay, so accordingly आपके provisions apply होंगे. टैक्स रेट विल बी 40% ओनली. तो जो आपका फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट होता है वही लगेगा. तो जैसे हमने ऊपर भी देखा कि प्रोविजंस विच आर एप्लीकेबल स्पेसिफिकली टू फॉरेन कंपनी, 40% इज नॉट इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट्स, इट्स इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी. 40% में ऐसा नहीं बोला कि फॉरेन कंपनी विच इज नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया. सो फॉरेन कंपनी पे 40% विल बी 40% इररिस्पेक्टिव उसका POEM इंडिया में है या नहीं है. 40% शैल रिमेन द सेम. And this shall be applicable notification 2017 से apply होगा. And accordingly for exchange rate conversion, जो भी आपके, क्योंकि आप फॉरेन कंपनी के साथ डील कर रहे हो, ऑब्वियसली आपके जो ट्रांजैक्शंस है वो फॉरेन करेंसी में भी हो सकते हैं. So your rule 115 shall be applicable for the conversion. So this is all about POEM provisions. We discussed about how to determine the POEM, and if the by POEM अगर वो रेसिडेंट हो गए इंडिया में तो फिर क्या होगा, ट्रांजिशन मैकेनिज्म क्या है, वो भी हमने डिस्कस किया. Go through it on your own, and if you are having any issues, any doubts, feel free to contact. All the very best for your examinations.